Assalamu alaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. It's me Alina Sarfraz, your English teacher, and today we will continue our unit number 1. Our topic is clauses and story writing. So let's begin. Before starting our today's lesson, first of all, let's see our today's learning objectives. By the end of lesson, students, you will be able to identify main and subordinate clauses. You will be able to apply comma correctly in clauses, and you will learn how to write a fiction. Before moving towards our main topic, first of all, let's see what is a clause. A clause is a group of words that has subject and a verb. Clause basically एक complete sentence को ही बोलते हैं और a group of words that contain subject and verb, जिसमें सब्जेक्ट जो काम करने वाला है एंड अ वर्ब जो काम किया है, दोनों चीजें आ जाए तो सेंटेंस ऑलरेडी कंप्लीट हो जाता है. एवरी क्लॉज हैज समवन और समथिंग डूइंग एन एक्शन. फॉर एग्जांपल, द डॉग बार्क्ड, मारिया रैन क्विकली, द बर्ड्स sang ब्यूटीफुली. अगर आप इन सारी एग्जांपल्स में देखें तो इनमें सब्जेक्ट और वर्ब हैं, जिसकी वजह से वो सेंटेंस की सेंस भी बन रही है. मेन क्लॉजेस, जिनको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, एंड द कंप्लीट आइडिया. Why we call them independent clause? Because a main clause can stand alone. It makes complete sense by itself. जैसे अभी मैंने ऊपर बताया आपको क्लोज के बारे में, सेम उसी की तरह मेन क्लोज के अंदर सब्जेक्ट भी होते हैं एंड वर्ब भी. सो दे गिव अस अ कंप्लीट सेंस. दैट्स व्हाई मेन क्लोज इज आल्सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लोज. ये अपनी सेंस खुद ही बनाते हैं, इनको किसी क्लोज की ज़रूरत नहीं होती टू कंप्लीट देयर मीनिंग. फॉर एग्जाम्पल, द डॉग बार्क्ड, मारिया रैन क्विकली, द बर्ड sang ब्यूटिफुली. प्रीवियस एग्जाम्पल्स हैं. मेन क्लोजेस basically are the definition of clauses. Subordinate clause or dependent clause. Unlike main clause, subordinate clause cannot stand alone. It needs a main clause to complete its meaning. में सबऑर्डिनेट क्लोज अगर अकेले ऐसे ही लिख दिए जाएंगे, उनके साथ कोई मेन क्लोज नहीं होगा, तो वो अपनी सेंस नहीं बना सकते. वो ऐसे लगेगा बस कुछ वर्ड्स लिख दिए गए हैं जिनकी कोई सेंस नहीं बन रही. फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, व्हेन द बेल रैंग, इफ यू स्टडी हार्ड. ना इसके आगे बताया गया ना इसके बाद में बताया गया कि क्यों है और क्या है, कोई रीजन नहीं दी गई. एंड वी यूज conjunctions or connectors to complete the sentence or to connect these clauses. For example, जो conjunctions हम इनमें यूज कर रहे हैं वो है when, because, if, although और since. एक तरीका ये है कि कंजक्शन यूज की जाए और दूसरा तरीका क्या, दूसरा रूल है कि इनमें इन्वर्टेड कोमा भी लगाया जाता है. इन्वर्टेड कोमा लगाने का एक रूल है कि if the subordinate clause comes first, then we add inverted comma before writing main clause. अगर subordinate clause starting में आ रहा है, फिर आप inverted comma लगाएंगे and then आप main clause लिखेंगे. For example, although it is raining, Anne goes for a walk. ये मैंने आपकी बुक में से अभी रीड की है एग्जाम्पल. इसका पेज मैं अटैच कर दूंगी नेक्स्ट पेज में. आपने इसको अपनी बुक पर सोल्व भी करना है. So here is the minor difference between main clause and subordinate clause. Main clause gives sense and subordinate clause cannot give sense if there is not a single main clause attached to it. Subordinate clause की अगर सेंस बनानी है तो उसके लिए मेन क्लोज बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपको इसकी कोई समझ नहीं आएगी. I have already explained we use connecting words or conjunctions to connect the ideas to complete our sentence. जब हमने sentences की टाइप होती है ना, कंपाउंड या कम्प्लेक्स सेंटेंस, लॉन्ग सेंटेंस बनाने होते हैं, फिर हम अपने आइडियाज़ को कनेक्ट करने के लिए ये जो क्लोजेज होते हैं, क्लोजेज मिलके कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं. इनके मिड में हम कंजक्शंस या कनेक्टिंग वर्ड्स लगाते हैं.
So for your better understanding and memorization, here is a difference between main clauses and subordinate clauses. Main clause can stand alone, but subordinate clauses cannot stand alone. Main clause give the complete sense, but subordinate clauses need a main clause. Main clause have a subject and verb, but subordinate clause start with connecting words. Main clause express complete thought, but subordinate clauses add extra information. मेन क्लोज आगे पूरी सेंस देगा, पूरी इंफॉर्मेशन आपको देगा, बट सबऑर्डिनेट क्लोज जो है, जो ऑलरेडी मेन क्लोज इंफॉर्मेशन दे रहा है उसमें एडिशन करेगा, वो खुद से कुछ नहीं कर सकता. Students, here is the picture of your student book, page number 24 and 25. Read the rules given in these pages before solving the exercise questions. So you have to solve part A and B on both pages. Now let's learn how to write a short story. There are 3 main steps to write a story. हर स्टोरी में 3 steps जरूर होते हैं. Beginning. In beginning we introduce characters and places. कि स्टोरी में कौन कौन से characters होंगे, लोग होंगे और किस जगह पर वो स्टोरी बनाई गई है. मिडल, प्रॉब्लम और इवेंट्स. मीन जो अंदर प्रॉब्लम होती है जिसको सॉल्व करना होता है हर स्टोरी में, वो मिडल में आएगी. एंडिंग, सोल्यूशन और कंक्लूजन. लास्ट पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है एंड एट द एंड स्टोरी कंप्लीट हो जाती है और उसकी एंडिंग यहाँ हैप्पी होती है या सैड एंडिंग होती है. सो बेसिकली आपकी वर्कबुक में आपको एक हिस्टोरिकल फिक्शन लिखने के लिए दी गई है. आपने पेज नंबर 11 पे ज़रूर हिस्टोरिकल फिक्शन लिखनी है. ऑलरेडी आपकी वर्कबुक में आपको प्रॉम्प्ट दिया गया जिसमें कैरेक्टर्स भी हैं, सेटिंग्स भी है. आपने जस्ट स्टोरी राइटिंग करनी है जिसमें आपने इसकी बिगनिंग, मिडल एंड एंडिंग लिखनी है. इट्स सो सिंपल. You need to practice and you need to sharpen your writing skills in these vacations. Now it's time to wrap up our today's lesson. We have learned about main clause and subordinate clause. Main clause can stand alone, but subordinate clause need main clause. And we also read about how to write a story. आपने ऑलरेडी क्लास में काफ़ी प्रैक्टिस की हुई है, आपको पता है स्टोरी कैसे लिखते हैं. सो मेक श्योर आप एक अच्छी सी स्टोरी वर्कबुक में अपनी लिखें ऑन पेज नंबर 11 एंड आल्सो सोल्व स्टूडेंट बुक पेज नंबर 24-25 ओनली पार्ट ए एंड बी ऑफ बोथ पेजेस. आपके 3 पार्ट्स हैं ए बी सी, बट यू हैव टू सोल्व ओनली पार्ट ए एंड बी ऑन योर बुक्स. Students, thank you for listening carefully. Allah Hafiz and see you in the next class.